ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਗੀ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ Lord Jesus। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ Lord। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ Lord Jesus। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ Lord ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਣ Lord। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ Lord Jesus। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਈ। ਯੈਸ Lord ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ Lord, ਯੈਸ Lord, thank you Jesus। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ Lord Jesus। ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਓ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਜੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ Lord Jesus। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜਾਈਏ in the name of Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Lord। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ Lord Jesus, ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ Lord Jesus। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ Lord, thank you Jesus, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord। Hallelujah, praise the Lord। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਰਾ। हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord। जी ठीक है, हाँ जी, शुरू करते हैं। बाप बेटे उसके नाम से हम बाप का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि आपने मौका दिया, हम हाजिर हैं बाप। इस वक्त के लिए हम दिल की शुक्र करते हैं, हम सबका हाथ आप इस पूरे पेमेंट का हार्ट हम आपके हाथों में दे दें। कोई दुआ में इतनी बिल्कुल करें आप, आखिर रूह हो जो पहुंचने का हमें जैसे मिले आप, हम प्रतीक्ष करें आप। आपको बोला आपको पसंद है, आप पाकलाम पढ़े हैं आप, उसको समझ के पढ़ सके, उसमें जितनी बातें हों, भेद की बातें हों आप, हम उनको समझ सके हैं बाप। हम तो अमल कर सके, हम सबका हाथ है आप, हम सबका बख्श दीजिए आप। किसी भी तरह की करप्शन है पेमेंट में, जितने लोग आए उनको शुदा करते हैं, जो लोग अभी नहीं है तो दूसरे पेमेंट में शामिल हो सके आप। हम सबका हाथ हम शुदा कुछ ने कबूल कीजिए, समझे नासिक के नाम में आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, God bless you। और ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਪਾਪਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਸਿਸਟਰ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ? और दीदी जा रही मेरी आवाज आ रही है आवाज। ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੀਜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣੀ। ਸਿਸਟਰ ਸਾਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਸਾਨੀਆ ਜੀ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड।
ओ धन जिसते बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओ धन सदा। ओ धन जिसते बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओ धन सदा। ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई, ते गरने देख की नल बदल गई। ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओ धन सदा। दिने भी तेरा तीवी मेरे खुदा, दिने भी तेरा तीवी मेरे खुदा, तेरा हाथ मेरे उत्ते भारा रेहा, तेरा हाथ मेरे उत्ते भारा रेहा। ओ धन जिसे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओ धन सदा। मैं कहाँ गया वादी आगे जरूर, मैं मनागा अपने गुनाह दे कसूर, मैं मन लांगा अपने गुनाह दे कसूर। ओ धन जिसे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओ धन सदा। Thank you, Jesus. Thank you. God bless you, Sister Ji. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. और ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸਰਾਫੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਸਰਾਫੀਨ ਜੀ। हेलो ਹਾਂਜੀ कौन बैठा रहने हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा, सोने नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। ओदे सोने रूप अगे चन्न तारे फिके ने, चन्न तारे फिके ने। सोने तो सोना यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। गीत गाओ जग विच नासरी दे प्यार दे, नासरी दे प्यार दे। सारियां तो उच्चा यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। दुनिया च कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा। सुखा नाल भरी होई ओदी बादशाही है, ओदी बादशाही है। रखदा है हाल जेड़ा पल पल हाल दा, रखदा है हाल जेड़ा पल पल हाल दा। दुनिया च कोई नहीं जे सोने नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, यसु बादशाह जलाल दा।
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨੀ ਜੇ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨੀ ਜੇ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਆਮੀਨ। Praise the Lord. Praise God. Thank you, Sister G. God bless you. ਖੁਦਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੀ। ਹੇ ਸਭ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਵਫਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਵਫਾ ਜੀ। ओके ओके वेट 1 मिनट। ओके जी। ਜ਼ਬੂਰ 42 ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤਿਆਂ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤਿਆਂ ਦੀ ਹਰਨੀ ਹੋ ਜੋ ਤਰਹਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤਿਆਂ ਦੀ ਹਰਨੀ ਹੋ ਜੋ ਤਰਹਾਈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੀ ਮੇਰਬਾ ਤੇਰੀ ਤਹਾਈ ਆਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੀ ਮੇਰਬਾ ਤੇਰੀ ਤਹਾਈ ਆਹੀ। ਰੂ ਮੇਰੀ ਤੜਪੇ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਤੇ, ਰੂ ਮੇਰੀ ਤੜਪੇ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਤੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂ ਹਾਜ਼ਿਰ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂ ਹਾਜ਼ਿਰ। ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਹੋਏ ਹੈ ਗਜ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਹੋਏ ਹੈ ਗਜ਼ਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਯਾਦ, ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਈਦ ਮਨਾਵਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਈਦ ਮਨਾਵਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਸ਼ਾਦ। ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਗੀਤ ਤਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹਾਲ, ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਗੀਤ ਤਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹਾਲ। ਆਮੀਨ। Amen. Praise the Lord. Thank you, Sister G. God bless you. Hallelujah.
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੋ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਣਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਟਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਓਕੇ। ਅੰਜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਟਨ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜੈਮਸੀ ਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਈ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਿਓ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ, ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਿਓ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸ ਕੋਲ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚਮਕਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਚਮਕਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਤਖ਼ਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਜਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਪ੍ਰੇ ਕਰਿਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, praise the Lord, hallelujah, thank you Lord Jesus। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा की आज की सारी बरकत के लिए, खुदा उनके आज के जो हमारे दरमियान उसने तख्त लगाया उसके मसा के लिए खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। हालेलुया, शिक्रिया कातरिया रेबे संदरा संदरा शिक्रिया कातरिया ओरा बा संदरा संदरा शीरिया बा संदरिया संदरिया। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा सैड्रिक को खुदा यीशु तेरे खून में छुपाती हूँ, अपने बेटे को छू बरकत दे खुदा अपने नाम अपने जलाल के लिए आज कसरत से इस्तेमाल करना खुदा तेरा गहरा मसा तेरे बेटे के ऊपर आज ठहर जाए खुदा। आज जो कुछ वो बोले खुदा वो तेरी तरफ से हो खुदा, तो लफ्जों की तरतीब देना खुदा, खुदा एक एक उसके लफ्ज के ऊपर यीशु तेरा मसा ठहर जाए यीशु के नाम से खुदा। जब वो बोले तो खुदा तेरी दिलेरी की रोज के ऊपर मांगती हूँ खुदा बाप, खुदा तेरा पाक कलाम मांगती हूँ खुदा। जब वो तेरा बेटा बोले तो खुदा वो हमारे लिए खुदा वो हमारी जिंदगियां तब्दील करने के लिए हो खुदा। हमारे अंदर जो खुदा पुरानी इंसानियत है वो हमारे अंदर से निकले और खुदा हम वो तेरे गहरे भेदों को जाने के खुदा तूने क्यों हमारे लिए खून बहाया खुदा, तूने क्यों यीशु हमारी खातिर जान दी। बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे खून बहाने के लिए, तेरे जान देने के लिए, तेरी सलीबी मौत के लिए, तेरे उस सफर के लिए जो मुसीबतों का सफर था जो तूने खुदा हमारे लिए सहा खुदा। आज वो गहरे भेद हमारे ऊपर खोलना ताकि हम उसको जान सके, हम उस तेरी तकलीफ को तेरे उस दुख को जो तूने खुदा हमारी खातिर सहा यीशु। ऐ बाप खुदा तू काके के जरिए आज मुझसे बोलना, आज पूरे ग्रुप से बात करना खुदा कि अब तो खुदा हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है कि हम तेरे लिए करें जो तूने हमारे लिए किया, लेकिन अब हमारा काम बनता है कि हम तेरे लिए कुछ करें। इसलिए आज खुदा तू हमारे साथ बोलना, आज तो खुदा हमारे साथ कलाम करना, आज खुदा तू हमें नया जोर नई ताकत देना खुदा वो फजल देना कि खुदा तेरे कलाम के ऊपर चल सके खुदा उन रस्तों पे चल सके जो तूने रास्ते हमारे लिए मुकर्रर किए हैं खुदा। आज खुदा तू अपने बेटे के जरिए से खुदा हम सबके साथ तसल्ली का कलाम करना खुदा। आज खुदा हमारी रूह बदन जान शफा पाए तेरे कलाम के वसीला से, तेरे खून के वसीला से खुदा। बाप खुदा काके को सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदा यीशु तेरे खून में छुपाती हूँ। तेरा बेटा आज खुदा जब बोले तो खुदा तेरे मसा जैसे पतरस पे ठहर गया था, जैसे पालूस रसूल पे ठहर गया था, जैसे यूहन्ना अरफ पे तेरा मसा ठहरा था खुदा, वही मसा उसी रूह का दूना मसा तेरे बेटे के ऊपर मांगती हूँ ताकि वो गहरे भेद वो गहरे मकाशबात जो तूने यूहन्ना अरफ पे खोले थे खुदा उसी तौर से खुदा आज तेरा बेटा हमारे लिए वो कलाम के भेद खोले खुदा तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदा तू अपने बेटे को ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है खुदा और ज्यादा दरवाजे खोल खुदा और ज्यादा अपने रूह की नेमते रूह के फल जो हैं तेरे बेटे की जिंदगी में काम करें यीशु के नाम से खुदा आज एक एक को जहां जहां हम बैठे हैं खुदा तो छूना, हमारे दिलों को टच करना, तेरे पाक तेरे निगाहबान तेरे जंगजू फरिश्तों को एक एक के चगिर्द मांग लेती हूँ ताकि इब्लीस की कोई भी बदी की कुव्वतें जो हैं वो हमारे खिलाफ जो काम कर रही हैं, इस ग्रुप के खिलाफ काम कर रही हैं, यीशु के नाम से उनको पीछे हटने का हुक्म देती हूँ और पूरे ग्रुप को यीशु तेरे पाक पवित्र तेरे कुदरत वाले खून में छुपा देती हूँ खुदा। एक एक को खुदा जहां जहां हम बैठे हैं और जो बाद में सुनेंगे उनको भी यीशु तेरे खून में छुपा देती हूँ क्योंकि खुदा तेरा खून ही है जो हमें कवर करके हमें छुपा के हमें महफूज रखता है यीशु के नाम से खुदा इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस जी। मैं सेड्रिक को दावत देती हूँ कि वो आए और जो भी खुदा ने आज हमारे लिए कलाम रखा है, जो हमारी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए, हमें नया जोर देने के लिए, ताकत देने के लिए, वो हमारे साथ शेयर करे। सेड्रिक।
मुझसे वो खुदा रू, मुझसे वो मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू, मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। और काफी दिनों के बाद आज मौका मिला कि फिर से खुदा के कलाम के बारे में हम कुछ बातचीत करें। और आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, बल्कि काफी दिनों से एक सीरीज चल रही थी और टॉपिक था हमारा ब्लड ऑफ जीसस। इसके ऊपर सिस्टर शाहीन ने भी काफी डीपली स्टडी दी हमें, और उसके बाद ग्रुप में से भी कुछ मेंबरान ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। तो आज बेसिकली टॉपिक तो हमारा ब्लड ऑफ जीसस ही है। तो लेकिन इससे पहले कि मैं ब्लड ऑफ जीसस के बारे में अपने मैसेज को शुरू करूं, एक छोटा सा उधार था मेरा, मैं चाहूंगा कि वो भी उतर जाए। कुछ दिन पहले सिस्टर सोनिया ने एक क्वेश्चन किया था कि हवा को जब बनाया गया तो जैसे आदम को बनाया, हवा को वैसे ही क्यों नहीं बनाया था। यानी जैसे आदम के लिए खुदा ने मट्टी ली और उसके पुतले के अंदर दम फूंका, ऐसे ही बिल्कुल ये सेम पैटर्न जो है वो हवा के लिए क्यों नहीं अपनाया गया था। सिस्टर एम आई राइट? यही क्वेश्चन था आपका सिस्टर सोनिया? हाँ जी, हाँ कुछ जी, गलत तो हाँ नहीं जी, है? हाँ जी। सेम यही है ना नहीं क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलें आज हम इसका जवाब जो है वो सिर्फ आपके साथ नहीं, सारे ग्रुप के साथ शेयर करते हैं कि ये जैसे आपने कहा है कि ऐसे काम होना चाहिए था, ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले हम पैदाइश की किताब में जाएंगे और जो सबसे पहले हवाला हम देखेंगे वह है पैदाइश 1 बाब और उसकी 26 से 27 आयत। जेनेसिस चैप्टर 1 और उसकी वर्स नंबर हम देखेंगे 26 से 27 तक। और यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है, और खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाए। मैं सिर्फ इसे इतना ही पढ़ूंगा, 26 वर्स जो है वो आगे भी है थोड़ा, लेकिन जो हमारे रिलेटेड है बात वो सिर्फ इतनी है। खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाए। तो इस बात को समझने के लिए कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, हम थोड़ा सा देखेंगे कि खुदा की जो क्वालिटीज हैं, जो खुदा की सूरत है वो कैसी है। तो खुदा की क्वालिटीज के बारे में हम कुछ इतना डिटेल से बात नहीं कर सकते। खुदा की खूबियां बेशुमार हैं, उनको हम गिन ही नहीं सकते खुदा की खूबियों को। हम यहाँ पे सिर्फ एक की बात करेंगे कि खुदा के अंदर एक खूबी है कि वो अपनी रूह को मल्टीप्लाई कर सकता है। खुदा की जब बात करें तो खुदा के अंदर एक क्वालिटी है कि वो अपनी रूह को मल्टीप्लाई कर सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि खुदा की रूह में से ही पाक रूह निकली, और खुदा की रूह में से ही हम ईमान रखते हैं, जितनी मसीही हैं वो ये ईमान रखते हैं खुदा के रूह में से ही यस्सु जो है वो भी निकला। ठीक है, और फिर हमारा मसीही लोगों के हमें बाइबल बताती है कि आदम के अंदर जो रूह आई थी वो भी खुदा में से ही निकली। तो इट मीन कि खुदा की जात की जो खूबी है, जो वो ये है कि खुदा की रूह जो है वो आगे मल्टीप्लाई होती है। तो यही जो बात है कि आगे हम देखते हैं कि जब खुदा ने आदम के लिए कुछ मददगार बनाना चाहा तो खुदा ने
जो सबसे पहली वजह जो हमें बाइबल बयान करती है कि खुदा ने देखा कि सभी के साथ एक एक जोड़ा है, और लेकिन आदम की मानद कोई ना मिला। तो खुदा ने जितनी भी चीजें बनाई थी उनमें से जो आदम था, सब चीजें जो है वो आदम के लिए बनाई खुदा ने, लेकिन आदम को खुदा ने अपने लिए बनाया। और जब आदम के लिए किसी मददगार की जरूरत पड़ी तो भी बाइबल में लिखा है कि जो उसकी मानद जो है वो आदम की मानद बागी अदन में कोई ना मिला। तो जो मेन एक पर्पस था बनाने का, वो ये था कि आदम की मानद ही जो है वो बनाना था। जब इंसान को खुदा ने बनाया तो अपनी मानद बनाया, और जब आदम के लिए बनाने की बारी आई तो तब ये जो है एक वजह सामने आई कि जो जो बनाना है वो आदम की मानद को। अभी और थोड़ा सा एक वर्ष को देखेंगे, वो वर्ष है पैदाइश में से ही, और उसके बाब नंबर 2 और उसकी 18 वर्ष को हम देखेंगे, जिसमें कुछ इस तरह लिखा है। खुदाया चैप्टर 2 और उसकी वर्स नंबर 18। और खुदावन ने कहा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है, हम उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाए। तो ये वाज़ेह तौर पर हमें बता रही है कि जो अगली मददगार बनानी थी वो किसकी मानद बनानी थी, आदम की मानद। तो आगे हम एक और वर्ष देखेंगे पैदाइश के बाब में से ही, और सॉरी वर्ष नंबर 11, पैदाइश का पहला बाब और उसकी वर्ष नंबर 11 देखेंगे। खुदा ने कहा कि जमीन सब्ज नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए। अब यहाँ पे बहुत ही डीपली बात है जिसे समझना पड़ेगा कि खुदा ने जो कुछ भी बनाया था, जितनी जानदार चीजें बनाई थी, जितनी जान चीजें खुदा ने बनाई थी, उन सब में खा वो जानवर थे, खा वो पौधे थे, उनके अंदर जो है ना खुदा ने एक बीज रखा था। और उन हर जानदार के अंदर ही अगली जो एक उसकी जनरेशन थी, या अगली जो जिंदगी थी, वो उसके अंदर ही खुदा ने रखी थी। और आपके लिए ये बात हैरानी की होगी कि खुदा ने यहाँ पर लिखा है सबके लिए, कि जितने भी कोई बीजदार मतलब पौधे थे, दरख्त थे, और जितने जानवर थे, उन सब के अंदर जो है वो अगली जिंदगी का बीज जो है वो उनमें मौजूद था। और जो समझने वाली बात है कि इस फार्मूले से या इस पॉलिसी से जो है वो आदम भी छूटा नहीं था। अगली जिंदगी का जो बीज है वो आदम के अंदर ही मौजूद था। जो इस वर्ष से हमें, क्योंकि खुदा ने जो कुछ भी बनाया था, आदम को भी अगर उसी के बीच में शामिल कर लें तो अगली जिंदगी का जो बीज था वो आदम के अंदर ही मौजूद था, खुदा ने उसके अंदर रखा हुआ था। दैट्स वाई के खुदा ने हवा को अलग से नहीं बनाया, चूंकि आदम के अंदर ही अगली जिंदगी का जो बीज था वो मौजूद था। तो खुदा ने उसी में से एक जो गोश्त का पीस है, उसके टिश्यूज में, उसकी हड्डी में से, उसके गोश्त में से जो है वो उसको लिया, और एक नई जिंदगी जो है खुदा ने क्रिएट कर दी और हवा को बना दिया। तो अब इस बात की जो कर दी मैंने कि ये जो अगली जिंदगी का बीज था वो आदम के अंदर ही था, इस बात की अब एविडेंस जो है वो हम देखेंगे। नहीं, अब मैंने स्क्रीन शेयर करनी है और उसको बना दो मुझे। ओके। हेलो सिस्टर शाहीन। बना दिया मैंने। हेलो। बना दिया काके। अच्छा सॉरी। फोन शेयर करो।
अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जिसको नहीं नजर आ रही काइंडली जरा अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखें। हाँ जी आ रही है। आ रही है। हाँ जी आ रही। ओके, ये शीप नजर आ रही है आपको? एक भेड़ जो है, हाँ जी आ रही है रही नजर। आ रही है। अच्छा हाँ नजर जी आ हाँ रही जी है। आ रही। अच्छा, अब जो बात हमने सीखी है कि आदम के अंदर ही अगली जिंदगी का बीज था, उसके बदन से खुदा ने जो गोश्त और टुकड़ा एक लिया था, उसके अंदर जिंदगी का बीज था। जितने भी दरख्त हैं, पौधे हैं, जो कुछ भी है जानवर, हर जानवर के अंदर जो है वो अगली जिंदगी का बीज खुदा ने रखा हुआ है, और वही बीज जो है वो खुदा ने आदम के अंदर भी रखा हुआ था। अब एक बात लगा हूं कि 5 जुलाई 5 जुलाई 1996 में इंग्लैंड में एक जगह है स्कॉटलैंड के अंदर जो है ना, ये जो भेड़ आप देख रहे हैं सब, इसको जो है क्लोनिंग के जरिए बनाया गया। ये पहली जिंदगी है दुनिया के अंदर। 5 जुलाई 1996 को जो है ना, ये भेड़ जो है खुदा ने, सॉरी, स्कॉटलैंड के अंदर जो है ना, इस भेड़ को बनाया गया। और क्या किया गया कि एक टिश्यू जो है एक दूसरी भेड़ का लेके उसको क्लोनिंग के थ्रू जो है ना, ये भेड़ जो है बनाई गई। तो ये एक पहली एविडेंस है जो मैं साइंस के थ्रू आपको दे रहा हूँ कि खुदा ने आदम के बदन में से जो एक फ्लैश लिया, जो टुकड़ा लिया गोश्त का, उससे खुदा ने हवा को बना लिया। और यही फार्मूला जो है, ये इंसान ने 1996 में इसको यूज करते हुए ये जो एक भेड़ बनाई है। और ये क्लोनिंग का जो प्रोसेस है, साइंस को जानते हैं, उनको पता होगा कि इंसान ने जो है ये भी काम एक शुरू कर दिया हुआ है। क्लोनिंग के जरिए जो है नए पार्ट्स जो है ह्यूमन बॉडी के वो बन रहे हैं। लेकिन 1996 में जो है ये भेड़ जो है, इसका नाम है डॉली द शीप। 5 जुलाई 1996 को जो है इसको बनाया गया था। रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में जो है ना, इसको बनाया गया था। और ये तकरीबन 8 साल तक जिंदा रही थी। 14 फरवरी 2003 तक जो है ना वो ये भेड़ जो है वो जिंदा रही। इससे आगे आगे भी इससे जो है वो रिप्रोडक्शन हुई। इसके जो बच्चे थे वो बोनी, सेली, रोजी, लूसी, डार्सी, काटन, इस तरह इसके आगे जो बच्चे थे 6 उनका नाम था। और ये भेड़ जो है आज भी नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर रखी हुई है। ये पहली एविडेंस है कि खुदा ने जो फ्लैश जो है आदम में से लिया था, उस फ्लैश के अंदर जिंदगी थी। और वही जो है वो मेथड यूज करते हुए इंसान ने जो 1996 में जो है ना कि एक गोश्त का टुकड़ा लेके उसी से एक नई जिंदगी जो है वो इंसान ने क्रिएट की। आगे 27 दिसंबर 2002 में अमेरिका का रियासत है फ्लोरिडा, वहां पे जो एक ब्रेजेट नाम की एक औरत है, उनका भी जो है क्लोनिंग का लैब है। उन्होंने दावा किया कि हमने जो है वो ह्यूमन क्लोन के जरिए ह्यूमन के टिश्यू से जो एक फीमेल बेबी जो है वो बना ली है। और उसका नाम उन्होंने ईव रखा। और 2002 के अंदर जो है ये एक, बस हमने स्क्रीन शेयर कर, तो आगे जो दूसरी हम बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि गिनती की किताब में जो रूह है जो इंसान की, वो भी आगे मल्टीप्लाई होती है। इंसान के अंदर जो बॉडी के अंदर खुदा ने सिस्टम रखा है, बीज उसके अंदर रखा है, और उससे आगे जो है वो नई जो एक जिंदगी है वो जन्म लेती है। और हमारी जो रूह है वो भी आगे मल्टीप्लाई होती है। खुदा ने जो आदम के अंदर रूह डाली थी, उसी रूह से जो है वो गोश्त के टुकड़े के अंदर जो है वो सिर्फ गोश्त और हड्डी नहीं आई थी, बल्कि
उस गोश्त के टुकड़े के अंदर जो जिंदगी का एक सारा प्रोसेस था वो भी उस गोश्त के टुकड़े के साथ ही खुदा ने ले लिया था। और यही वजह है कि आज भी किसी जानदार चीज का जो है वो उसका कोई टिश्यू लेके तो उसके साथ एक क्लोनिंग का जो प्रोसेस करते हैं, एक नई जिंदगी जो है वजूद में आ जाती है। तो खुदा को बिल्कुल ऐसी की जरूरत नहीं पड़ी कि वो अलग से एक मिट्टी का पुतला बनाए और उसके अंदर जो है दोबारा से रूह फूंके, बल्कि जो खुदा ने जहाँ पे, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि अपनी अपनी किस्म के मुताबिक जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, यानी हर चीज जो खुदा ने बनाई थी उसके अंदर अगली जिंदगी का बीज था और रूह भी जो है वो उसी के अंदर जो है वो खुदा ने रखी हुई थी। अगर हम अपने गोश्त को देखें तो इसके अंदर जिंदगी का रूह जो है वो मौजूद है और इसका सबूत जो है वो ये जो साइंस की दो मिसालें दी हैं कि अगर ये गोश्त के अंदर जो है वो रूह ना होती तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान जो है वो गोश्त के एक टुकड़े से ही अगली जिंदगी जो है वो उसको प्रोड्यूस कर लेता। तो मेरा ख्याल है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि आदम के बदन के अंदर ही उसका जो गोश्त था उसके अंदर अगली जिंदगी का बीज जो है वो प्रॉपरली मौजूद था। दैट्स वाई कि खुदा को जरूरत नहीं पड़ी, खुदा ने उसी को लिया और उसमें से अगली जिंदगी जो है खुदा ने निकाला। और फिर खुदा की रूह जो है इंसान के अंदर जो रूह है वो भी आगे मल्टीप्लाई होती है। मैं अब पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन गिनती की किताब उसका 11वां बाब और 17 आयत में हम देखते हैं कि जब मूसा को खुदा ने कहा कि 70 बुजुर्ग ले और मैं तेरी रूह में से थोड़ा थोड़ा उन पर डालूंगा, हमारे अंदर जो रूह है वो भी आगे मल्टीप्लाई हो सकती है। और इसका एक और एग्जांपल जो है हम सलातीन, दूसरा सलातीन की किताब में उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में हम देखते हैं कि जब एलिया आसमान पर उठाए जाने का तो अलीशा ने एलिया से कहा था कि तेरी रूह का जो है मुझे दुगना चाहिए, और वो उसे मिला भी था। तो इंसान की रूह जो है वो भी आगे मल्टीप्लाई होती है और इंसान के बदन का जो जो भी उसके अंदर है, जो कुछ भी है, उससे अभी आगे जो है वो एक नई जिंदगी बन सकती है। तो ये सारा कुछ आदम के अंदर सिस्टम मौजूद था। दैट्स वाई खुदा ने उसी सिस्टम को यूटिलाइज करते हुए कि और नई जिंदगी जो है वो वजूद में लेके आया था। और मेरा ख्याल है कि इतना काफी है इसके जवाब के लिए, और उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा और तसल्ली भी मिल गई होगी। अब आते हैं हम जो हमारा आज का मेन टॉपिक है जो काफी दिनों से चल रहा था, ब्लड ऑफ जीसस का। बीते दिनों में सिस्टर शाहीन ने काफी डिटेल से बताया और बाकी लोगों ने भी बताया यीशु के खून के बारे में, और उसमें जो हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि यीशु ने जो हमारे लिए खून बहाया उससे हमने क्या क्या जो है वो हासिल किया। यीशु के खून बहाने से, यीशु के खून बहाने से हम हमारे गुनाहों की जो माफी हुई, हमारी लानतें जो है वो खत्म हुई, हमारी बीमारियों से यीशु के खून ने हमें रहाई दी, और बदरूहों से जो है यीशु के खून ने हमें रहाई दी। पिछले दिनों में हमने ये सारी बात काफी डिटेल से जो है वो सीखी है। तो आज आई थिंक इस टॉपिक का हम एंड कर रहे हैं। तो आज मैं नो डाउट के यीशु के खून के बारे में ही बात करने वाला हूँ, लेकिन हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ 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 आ रही जी, है, आ हाँ रही। जी, आ रही है, अरे कंटिन्यू तो करो। मेरा भी आज टॉपिक यही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम फर्क तरीके से देखेंगे। मैं जो जिस बारे में आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि यीशु को हमारे लिए खून क्यों बहाना पड़ा। सब जानते हैं किस लिए बहाना पड़ा, लेकिन सवाल को मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि यीशु को हमारे लिए खून क्यों बहाना पड़ा। इसको इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि यीशु को ही हमारे लिए खून क्यों बहाना पड़ा। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि यीशु ने हमारे लिए जो खून बहाया
اس سے ہماری گناہوں کی اور لعنتوں سے اس نے ہمیں رہائی دی، نجات دی، اور دوسرا جو ہماری بیماریوں کو اور بدبوؤں سے ہمیں رہائی دی، اس بات سے کوئی انکار نہیں. لیکن یسوع کو ہی ہمارے لیے خون کیوں بہانا پڑا، آج ہم اس بارے میں بات کرنا، میں اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے جو ہے ہم تھوڑا فلیش بیک میں جاتے ہیں پرانے عہد نامے کی طرف. اور اب سب جانتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کے لیے خون بہایا گیا. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، کافی میں اس پہ غور و فکر کر رہا تھا، تو میں نے تھوڑا سا ایک کمپیریزن کیا کہ اگر یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے خون بہایا ہے تو پیچھے خروج کی کتاب میں، اخبار کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہیکل میں قربانیاں دی جاتی تھی وہاں پہ پرلوں کا خون جو ہے وہ بہایا جاتا تھا، مذبح پہ جو ہے وہ چھڑکا جاتا تھا، اور صندوق شہادت جو مطلب ہولی باکس ہے اس کے اوپر چھڑکا جاتا تھا. تو اسرائیل کے گناہوں کی جو ہے معافی ہو جاتی تھی. یسوع کے آنے سے ہزاروں سال پہلے جو ہے بروں کے خون سے معافی ہو رہی تھی. پھر یسوع نے آ کے خون کیوں بہایا؟ اور اگر ہم دیکھیں بیماریوں کی بات کریں تو بیماریوں سے بھی شفا ہو رہی ہے. آپ الیشا کو سبھی جانتے ہیں. تو نمان کوڑی جب آیا تو الیشا نے اسے کہا کہ جا دریائے یردن میں 7 کوڑے مار، تیرے کوڑ جو ہے شفا پا جائے گا. بیماریاں بھی جو ہے ہم پچھلے عہد نامہ میں دیکھ رہے ہیں کہ بیماریوں سے بھی شفا مل رہی ہے. اور اگر دیکھیں تو مردے بھی زندہ پرانے عہد نامے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. الیشا نے بھی ایک مردے کو زندہ کیا، اور اس کا جو ہم ذکر ملتا ہے سلاطین کی کتاب میں، پہلا سلاطین اس کا 17 باب اور 21 آیت میں دیکھیں تو ایلیا نے جو ہے وہ ایک بیوہ کے بچے کو زندہ کیا. دوسرا سلاطین میں الیشا نے جو ہے وہ ایک بچے کو زندہ کیا. تو یہ ساری باتیں جن کے بارے میں ہم نے بیتے دنوں میں بات کی ہے، یہ ساری باتیں پرانے عہد نامے میں ہو رہی ہیں. گناہوں کی معافی بھی مل رہی ہے، مردے بھی زندہ ہو رہے ہیں، بیماریوں سے بھی شفا مل رہی ہے. تو آواز نہیں آ رہی باجی. آواز بند ہو گئی. انٹرنیٹ خراب ہو رہا ہے. ہاں جی. سسٹر جی ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਉਹ سلاطین ਸਲਾਤੀਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਮੂਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿੰਗ ਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੀਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ سیموئل کے بعد ہاں. انجنا جڑا حوالہ کیا ہے نے سیڈرک نے وہ پڑھ لیا. ورڈس نہیں پتا چلو آگے. ہلو. ہاں جی. سوری نیٹ اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ چھوٹ گیا تھا. آپ خود بتا دو کہاں پہ تھا، کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ علیشا نے اور ایلیا نے مردے زندہ کیے. جی ٹھیک ہے. ایلیا نے جو ہے مردے زندہ کیے، الیشا نے بھی زندہ کیے. بیماریوں سے بھی شفا مل رہی ہے ہمیں پرانے عہد نامے میں. اور جو ایک جس کے لیے پچھلے دنوں دیکھا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یسوع کو کیوں آنا پڑ گیا. مطلب اگر یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، گناہوں سے ہمیں شفا مل رہی ہے، یسوع نے ہمیں گناہوں سے آ کے نجات دی ہے، تو نجات تو پچھلے ٹائم میں بھی مل رہی ہے. یسوع نے مردوں کو زندہ کیا، مردے بھی زندہ ہو رہے ہیں. بیماریوں سے شفا دی، بیماریوں سے شفا بھی ہو رہی ہے. تو یسوع نے آ کے ایسا کیا ہمارے لیے نیا کام کیا ہے کہ جو پہلے نہیں ہو رہا. اگر کوئی تو ایسی پرابلم آ گئی نا کہ ہم مانتے ہیں، سارے مسیحی مانتے ہیں کہ
यसु जो है वो खुदा की जात का एक हिस्सा है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि खुदा को खुद जो है वो इंसानी जिस्म लेके तो खून बहाना पड़ा? तो जाहिर बात है इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था। अगर यही बातें थी तो ये बातें तो पीछे होती आ रही हैं। Am I right? तो यीशु के आने का जो मकसद है वो इन सब बातों से बहुत बड़ा है। और देखते हैं कि अब थोड़ा सा ना कंपैरिजन करेंगे कि ये सारा कुछ जो पिछले अहदनामे में भी हो रहा है, उन्होंने भी किया, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो इससे हट के हैं, जो पीछे हमें नजर नहीं आएंगी। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के खून से जो है वो हमें मैं और वो सबसे पहली बात जो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि अगर पीछे हम देखें तो गुनाह जो है वो माफ हो रहे थे, लेकिन एक चीज जो है वो नहीं हो रही थी। और वो चीज क्या थी कि हजारों साल से इब्राहिम से लेके अगर हम देखें तो खुदा के सारे जो प्लान थे, जितने भी प्लान थे खुदा के, वो सब के सब इसराइल के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। गुनाहों की माफी हो रही है तो इसराइल के गुनाहों की हो रही है। अगर कोई बदला चढ़ रहा है, बैल जो है वो कुर्बान किया जा रहा है, उसका खून बहाया जा रहा है, तो गुनाह सिर्फ और सिर्फ इसराइल के ही माफ हो रहे हैं। तो जो कुछ भी पीछे हम देखते हैं खुदा के सारे कामों को, रिहाई जो हो रही है वो इसराइल की हो रही है। खुदा उन्हें मिस्र से लेके निकल रहा है। और अगर मैं देखूं, मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने देखा कि खुदा ने हजारों साल तक सिर्फ और सिर्फ इसराइल के जो है वो लाड उठाए हैं और इसराइल के चौंसले जो है वो खुदा ने उठाए। बाकी दुनिया की किसी कौम को खुदा ने बिल्कुल, हमें पुराने अहदनामे को पैदाइश से लेके आगे यीशु के आने तक देख लीजिए, खुदा ने किसी और कौम के लिए निजात का कोई जो है वो ऐसा काम हमें अगर बाइबल में नजर आता है तो काइंडली मुझे क्यों बताए। किसी कौम के लिए कोई ऐसा हमें काम नजर नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए जो है वो खुदा के नजर आ रहा है कि उन्हीं को जो है वो खुदा हर जगह जो है वो देख रहा है, जबकि बाकी कौमों के लिए हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि उनके लिए भी खुदा ने जो है वो कोई रहाई का या निजात का जो है वो कोई वसीला उनके लिए बनाया हो। लेकिन वाहिद एक यीशु की जात है कि जब यीशु ने कहा कि देखो, यूहन्ना ने, जब यीशु आया बपतिस्मा लेने के लिए तो यूहन्ना ने पुकार करके, बल्कि मैं कहता हूँ कि पाक रूह ने पुकार कर कहा, और ये लिखा है मरकज 16 बाब और उसकी 15 आयत में। मरकज 16 बाब और उसकी 15, देखो खुदा का बदला जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। तो ये कंपैरिजन जो है हमें बताता है कि पीछे जितनी भी कुर्बानियां दी गई, जो बर्रे चढ़ाए गए, जो बैल चढ़ाए गए, उनसे सिर्फ खलासी होती थी तो इसराइल की होती थी। इसराइल के गुनाह जो है वो खुदा माफ करता था, बाकी कौमों के गुनाह जो है वो जो के तो ही उनके सर पे धरे हुए थे। तो माफी भी अगर मिल जाती थी बर्रे के खून से या बैल बछड़े की कुर्बानी से, तो वो सिर्फ इसराइल को मिल रही थी। बाकी कौमें वैसे ही जो है वो उसके अंदर पिस रही थी। तो ये पहली दफा हुआ इतने हजारों साल के बाद, यीशु के आने के बाद जो है वो बाकी कौमों की भी सुनी गई, बाकी दुनिया की भी सुनी गई कि उनके गुनाहों के लिए भी खुदा ने जो है वो स्टेप उठाया। और जो आपने देखा कि यीशु ने जाते हुए जब आसमान पे उठाया जा रहा था, जाना था, यीशु ने कहा कि जाओ और सारी दुनिया में अंजील की मनादी करो। यीशु ने ये नहीं कहा कि जाओ इसराइल में जाके तो मनादी करो, बल्कि यीशु ने कहा कि जाओ सारी दुनिया में अंजील की मनादी करो। और जब यूहन्ना ने पुकार कर कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, तो ये एक फर्क मुझे नजर आया यीशु के खून का और पीछे जो बर्रे जिनका खून जो है वो बहाया गया, और यीशु के खून बहाने में ये फर्क है, यीशु ने पूरी दुनिया के लिए खून बहाया। जबकि पीछे जो हम देखते हैं उससे सिर्फ जब भी जान छूटती थी इसराइल की राय की जो है वो बात होती थी, पूरी दुनिया की बात नहीं होती थी। और यीशु ने जो है वो पूरी दुनिया के लिए जो है खून बहाया। और ये एक बड़ा फर्क जो है मैं इसे पहले नंबर पे लेके आया हूँ
کہ یہ جو ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ خدا نے کہہ لیں کہ قربانی جو ہے وہ دی، اور خود جو ہے وہ قربان ہوا خدا کے. باقی جو پیچھے برے تھے، جو بیل تھے، بچڑے تھے، ان کے ساتھ صرف اسرائیل کی رہائی تھی، وہی پوری طرح نہیں ہو پاتی تھی. ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، اینولی بیسس پہ اور منتھلی بیسس پہ قربانیاں چلتی ہی رہتی تھی، اور آج تک وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. وہ آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یسوع نے ایسی ایک کامل قربانی دی جو صرف اسرائیلیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ نجات کا باعث بنی. برا جو تھا، بھیڑ جو تھی، میمنا جو تھا، وہ صرف اسرائیل کے گناہوں کے لیے رہائی کا باعث بنتا تھا، لیکن یسوع کا خون وہ واحد خون ہے جو پوری دنیا کی رہائی کے لیے، پوری دنیا کی رہائی کا جو ہے باعث بنا. اب دوسری جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پہلے جب انسان گناہ کرتا تھا یا اسرائیلی جب گناہ کرتے تھے تو ہر گناہ کی جو ہے وہ قیمت دینی پڑتی تھی. وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا یا جیسا بھی گناہ ہوتا تھا، خدا ان سے جو ہے وہ قیمت لیتا تھا. اگر پیچھے ہم نے جب قربانیوں والا پڑھا تھا چیپٹر، اس میں ہم نے قربانیوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے دیکھا ہے کہ اگر خطا ہو جاتی تھی تو اب جانتے ہیں کہ بکری، بھیڑ، اگر اس کی بھی سکت نہیں ہوتی تھی کسی میں تو خدا نے کہا تھا کہ کبوتر کے جو بچے ہیں وہ لے آؤ، اگر وہ بھی نہیں ہے تو میدا لے آؤ، میدا لے کے جو ہے وہ ہیکل میں آؤ. کچھ نہ کچھ دے کے ہی جو ہے وہ گناہوں کی معافی ملتی تھی. لیکن واحد ایک یسوع کا خون ہے کہ ایک چونی تک نہیں ہماری لگتی. اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ تم نے مفت پایا ہے اور باقی سب کو بھی مفت ہی بانٹنا. تو یہ ایک بڑا فرق ہے یسوع کے خون میں اور پیچھے بہے ہوئے بروں کے خون میں، کہ ان کے لیے جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ دینی پڑتی تھی، لیکن یسوع کے جو خون بہا ہے اس کے لیے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑتا، 1 چونی بھی نہیں دینی پڑتی، نہ کوئی میدا دینا پڑتا ہے، نہ کسی طرح کی بھی کوئی ہمیں چیز جو ہے وہ خدا کو دینی نہیں پڑتی. لیکن پہلے جو ہے یسوع کے خون بہانے سے پہلے جو ہے ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو لے کے آنا پڑتا تھا ہیکل کے اندر، اور پھر آپ کی جو ہے وہ جان چھوٹتی تھی. لیکن آج ہمیں کچھ بھی نہیں لینا پڑتا، صرف اپنا دل لے کے جانا پڑتا ہے یسوع کے پاس اور جو ہے ہماری رہائی ہو جاتی ہے. اب میں ایک ایگزامپل دوں گا. پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ہر چیز کے لیے جو ہے ہیکل میں قربانی دینی پڑتی تھی اور بنا خون بہائے جو ہے وہ معافی نہیں تھی. ایک عورت ہم نیا نامے میں دیکھتے ہیں کہ اسے لوگ لے کے آئے یسوع کے پاس کہ عین زنا کے وقت اس کو پکڑا گیا ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، موت کی سزا دی، پتھر مار مار کے جو سنسار کرنا ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ پتھر مار مار کے بندے کی جان لے لی جاتی تھی. تو دوسرا جو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تو انہوں نے تو شریعت کے مطابق کہا کہ اس کی جو ہے وہ سزا یہی ہے کہ اسے سنسار کیا جائے. تو یسوع نے کہا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور وہاں سے سب چلے گئے. اور یسوع نے اس کو گناہوں کو معاف کیا، اس عورت سے کیا کچھ لیا، اور جس کو بھی یسوع نے معاف کیا کسی سے بھی یسوع نے کچھ بھی نہیں لیا، جس کو بھی رہائی دی، نجات دی، یسوع نے مفت دی. جبکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نجات اور رہائی جو ہے وہ مفت نہیں تھی. یہ واحد یسوع کا خون ہے جو ہمارے لیے مفت میں بہایا گیا، ہمارے لیے جو ہے وہ ایک فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے یسوع نے بہایا کہ جو بھی اس پر ایمان لے کر آئے وہ نجات پائے. تو یہ ایک بڑا میجر فرق جو ہے مجھے نظر آیا کہ پیچھے میں نے اپنی بات کا سٹارٹ کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، گناہوں کی معافی بھی ہو رہی تھی، مردے بھی زندہ ہو رہے تھے، بیماریاں بھی اچھی ہو رہی تھی. تو پھر یسوع کے خون میں ایسی کیا بات تھی؟ تو یہ دوسری بات جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ فرق جو ہے وہ یسوع کے خون کا. اب زیادہ
اگر میں اس کو کھولتا جاؤں تو کافی ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 2 یا 3 باتوں سے ہی میں اس کو ثابت کروں. ہم نے دیکھا تھا کہ پیچھے فون بائے بغیر معافی نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہم نے دیکھی کہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ فری میں نجات ہے. پہلے جو ہے وہ نجات جو ہے وہ خریدنی پڑتی تھی، لیکن آج ہمیں جو ہے وہ ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جیسے پر فقط ایمان لے کے آنا ہے اور ہماری جو ہے وہ نجات ہو جاتی ہے. آج کے لیے بس میں یہ 2 باتیں ہی شیئر کروں گا. باقی آگے مزید اور بھی ہیں، لیکن میسج جو ہے وہ کافی لمبا ہوتا جائے گا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ باتیں اتنی ہی ہوں جو سننے والوں کو یاد رہ جائیں. تو اس لیے میرا ایمان ہے کہ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو، آپ سب کو برکت ملی ہوگی. آمین. اب میں مائک دوبارہ سسٹر سونیا کے حوالے کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی میٹنگ کو آگے جانے رکھیں. ہاں جی پریز اللہ پتہ جی تھینک یو. ہاں جی سانو اس میسج تو بہت برکت ملی ہے. خداوند نجات آشیش و برکت دے. اور تسی اسی طرح اور بھی پیج کھولو اور اس کی اور بھی ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਵਾਧੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਖੁਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ. ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਿਖਣ. ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਿਸਟਰ ਸਰਈਆ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ. ਸਿਸਟਰ ਸਰਈਆ ਜੀ. Hello, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord ji. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بندہ کے لیے کہ آج اس نے اپنے روح کے وسیلہ سے آج ہم سے کلام کیا اور اس نے اپنے بندہ کو استعمال کیا. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے سارے فضل کے لیے، اس کی ساری مہربانی کے لیے، اس کی ساری محبت کے لیے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جو اس نے خداوند میں رہتے ہوئے ہم سے ساری باتیں جو شیئر کی ہیں، ہم اس کے پاک روح کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس سارے میسج کے لیے جو ہمارے خداوند یہوہ پاک خداوند کے ہی لیے ہیں، اسی کی پرستش کے لیے، اسی کی تمجید کے لیے، اسی کی بادشاہی کو وسعت دینے کے لیے ہیں. ہمارا ایک ایک الفاظ، ہمارا بولنا، ہمارا ہاتھ اٹھانا، ہمارا سجدے میں جانا، ہمارا اپنے لبوں کو کھولنا، ہمارا پرستش کرنا، سارا کچھ ہمارے یہوہ پاک خدا کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، اور کوئی اس کے کھولے کو بند نہیں کر سکتا، نہ اس کے بند کیے کو کھول سکتا ہے. ہم اسی یسوع المسیح کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بڑی نجات کے لیے، اس بڑے نجات کے بید کے لیے جو ہمیں مسیح یسوع میں ملتا ہے اور کسی کے وسیلہ سے ہمیں نہیں ملتا ہے. صرف اور صرف اس کے بیٹے پر ایمان لانے سے، اس کی حضوری میں آنے سے، اپنے ہونٹوں کا ہدیہ اس کی حضوری میں پیش کرنے سے، اپنے دل کو اس کی حضوری میں لانے سے، صرف اور صرف ہمیں یسوع نام میں یہ نجات جو ہے لہو کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے. ہم خداوند کے بیٹے یسوع المسیح کے لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یس ہاللویہ پریز دی لارڈ گلوری ٹو جیسس ونڈرفل. تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہے باپ خداوند تو نے ہمیں سکھایا کہ خداوند پہلے
लोगों को खुदावन सिर्फ और सिर्फ बाप इसराइल के लिए खुदावन कुर्बानियां दी जाती थी, लेकिन अब बाप तेरे बेटे ने जब हमारे लिए कुर्बानी दी वो इसलिए आया कि खुदावन पूरे दुनिया पूरे लोग खुदावन निजात पाए, रहाई पाए, खा वो किसी भी कौम से कबीला से ताल्लुक रखते हो, किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक रखते हो, तू हर एक के लिए तूने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया कि उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से हर कोई बाप शिफा पाए, निजात पाए, रहाई पाए, मखलिसी पाए और अपने गुनाहों से खुदावन बाप निजात हासिल करे। बाप हम तेरे शुक्रगुजार है कि आज तेरे बेटे के वसीला पे, उस पर ईमान लाने के वसीला से हम अपनी निजात का हिस्सा बनते हैं, हम अपनी शिफात का हिस्सा बनते हैं, हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने रूह को खुदावन बाप तूने सिखाया कि तू अपने रूह को खुदावन तू मल्टीप्लाई करता है। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ और तारीफ करते हैं जलाल के बादशाह कि तू रूह नाप कर नहीं देता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस भेद के लिए खुदावन, पाक रूह के भेद के लिए जहाँ तो तेरे बंदे ने खुदावन खोला हम पर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस बड़ा भेद के लिए, इस बड़ा मुकाशफा के लिए। अब बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ और तेरी ही सिताइश करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं और साथ जलाल बाप हम तेरे यीशु नाम को देते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि हमारा बोलना, हमारा कलाम सुनाना, हमारे दुआएं करना सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए है। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, इसलिए मैसेज के हर एक लफ्ज के लिए बाप हम तेरे यीशु नाम को इज्जत जलाल देते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा बेटा कम होता चला जाए और तू उसकी जिंदगी में नजर आता चला जाए, नुमाया होता चला जाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। तब जो तू भेद इस पर खोलना चाहता है वो भेद खुलता चले जाए बाप यीशु के नाम से। बच्चे को बोल, से कलाम कर, गहरे भेद यूहन्ना आरख की तरह बाप खोलता चला जाए बाप। तेरा बंदा इसी खुशनसीबी के साथ, इसी दिल जमाई के साथ, इसी बाप दिल के साथ बाप तेरे भेदों को तेरे लोगों पर अया करता चला जाए। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, किसी किस्म की कोई मिलावट ना होने पाए, किसी किस्म का कोई दुश्मन करने भी होने पाए यीशु नासरी के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। और दुश्मन तेरे बच्चे की जिंदगी से शिकस्त खाए बाप और इसके हाथ से पीछे दुश्मन का मुझसे प्यार लाने से ना से बाप हर तरह का मुझसे हर तरह की मकारी और उसके हर तरह के कंडे जरा बंदे के खिलाफ है, हम यीशु के नाम से बाप उनको प्यार कर देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप। अपने बंदे को गहरे में ले चल, अपने बंदे पर गहरे भेद खोल दे बाप। तेरा बंदा डाउन पांव तक नहीं, टखने तक नहीं, डाउन गर्दन तक नहीं, बल्कि सर से पांव से लेकर सर तक बाप तेरे पाक के दरिया में तैरे यीशु नासरी के नाम से बाप। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप हम तेरा शुक्र है। दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी तो उसने अपने बेटा बेटा बख्श दिया। आज तेरे बेटे के वसीला से बाप हम तेरे रूह में बढ़ते जाए बाप। यस यस फादर गॉड, हालेलुया। तेरी ही तारीफ और तारीफ करते हैं जलाल का बादशाह, हम तुझे मुबारक करते हैं, तू हमारा जिंदा खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज अब बाप तेरे बच्चे के लिए दान अब बाप तेरे रूह का जिस तौर से बाप तूने एलिया का अलीशा को दूना दिया बाप उसी तौर से बाप आज तेरा पाक रूह तेरे बच्चे की जिंदगी में ऐसे ही आए, ऐसे ही अपने जलाली कामों को जाहिर करे और यीशु नाम इज्जत जलाल पाए और उसके बाद चाहिए वसत पकड़े या दुश्मन की बात सही शुक्र तेरे बंदा के वसीला से यीशु नासरी के नाम से बात इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तारीफ करते हैं, हालेलुया। और बेरीजी बीजे रेशिंद बेरीजी तेरा शुक्र अदा करते हैं हम साज लाला बाप तेरे यीशु नाम को देते हैं। तेरे लहू की खुदावन भाई के कीमत लहू की कीमत लहू के लिए जितने हमारे लिए बहा दिया हमारी हर तरह की निजात हम निजात लहू के वसीले से हमारी हर तरह की निजात, हमारी हर तरह की बदकिरदारी हमारी हर तरह की बाप बद इखलाकी हम हमारे हर तरह के ऐसे रवैये तेरे लहू के वसीले से धुलते चले जाते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज हमने मुफ्त पाया और मुफ्त दे बाप यीशु के नाम से बाप हालेलुया। ऐसा जज्बा, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत हम में डाल दे जिसे तो तेरे बंदे ने हमें सिखाया है कि यीशु ने हमारे लिए पहले हमें कुर्बानियां देनी पड़ती थी, पहले हमें हैकल में कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ता था, लेकिन मेरा यीशु आया और उसने कहा कि तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त
दो यीशु के नाम से बाबा हालेलुया हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू दिस वंडरफुल डाउन आज हमारे अंदर भी ऐसा ही जज्बा हो दान हम एक दूसरे को दान मुफ्त बांटे हैं बाप मुफ्त दे हैं बाप निजात खुदावन आज ने हमारे लिए दान मुफ्त कर दिया बाप लहू तूने हमारे लिए मुफ्त बहा दिया बाप रिहाई हमारे लिए मुफ्त कर दिया बाप हालेलुया और शिफा तूने हमारे लिए मुफ्त कर दिया अपने लहू के वसीला से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज हमें इकरार करना है आज हमें मुंह से अब आप इकरार करना है आज हमें अपने होठों को खोलना है और तेरी हजूरी में क्योंकि जो जुबान इकरार करेगी वो निजात पाएगी और यीशु के नाम से बाप आज अब आप हमें निजात खरीदनी नहीं पड़ रही है आज हमें शिफा खरीदनी नहीं पड़ रही है बल्कि हमने मुफ्त बाप तूने हमारे लिए सारा इंतजाम कर दिया अपने बेटे के वसीला से उसके लहू के वसीला से अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज हमें कोई तवक्को नहीं करनी आज हमें इकरार करना है आज हमें दिल से ईमान लाना है तेरे बेटे पर तभी हमारी निजात है तभी हमारी रहाई है तभी हमारी मखलिसी है तभी हमारी शिफा है तभी हमारी अपनी जिंदगी है अब आप इस निजात के प्लान के लिए जो तेरे बेटे यीशु मसीह में हमें मिलता है अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इसीलिए उसने कहा कि तमाम हुआ हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे के इस कलमे के लिए अब आप और निजात के इस कलमे के लिए जहाँ जो तूने अब आप कहा कि तेरे लिए कि तू आज ही मेरे साथ दोस्त में शामिल होगा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज तेरे बेटे पर ईमान आने से हम निजात पाते हैं रहाई पाते हैं गुनाहों से अब आप में रहाई पाते हैं गुनाहों से निजात हासिल करते हैं बीमारियों से निजात हासिल करते हैं बदकिरदारियों से निजात हासिल करते हैं हज़र की खबासों से निजात हासिल करते हैं हज़र की नाराज़गी से निजात हासिल करते हैं हर तरह के अब आप गुनाह से हम निजात हासिल करते हैं अब आप नस्ल बीमारियों से हम निजात हासिल करते हैं यीशु का शुक्र करते हैं यस माय लॉर्ड हालेलुया रियोज और जेरे बेरे जिनी शिंदर बरो आज हमारा निकलता चला जाए तेरा शुक्र अदा करते हैं यस यस फादर गॉड यीशु तेरा शुक्र अब्बा तेरे बेशकीमत लहू के लिए तेरे कीमती लहू के लिए सोने चांदी से ज्यादा कीमती है अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं यस 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 फादर गॉड हालेलुया आज हमारे गुनाह धुल गए हैं लहू के वसीला से तुझ पर ईमान लाने के वसीला से तुझको अपना मुनज्जी मानने के वसीला से हमारी निजात हमें मिली है हम तेरा शुक्र अदा करते हैं Yes, Father God, hallelujah. Diere bere bere ziri shinda boro ziri. सब कोई तो इकरार करेगा वो निजात पाएगा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा हालेलुया ये और बरो सरे शिंदा ज़िरी ज़ोरी ज़िरी बरे शिंदर बरो ज़ोर तेरा शुक्र अदा करते हैं यस माय लॉर्ड हालेलुया आज हमारी खलासी तेरे लहू के वसीला से है अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज हमारे बच्चे तेरे लहू में छिप रहे हैं आज हमारे घराने तेरे बेटे के लहू में छिप रहे हैं आज हमारा प्रे ग्रुप तेरे लहू में छिपा रहे हैं यीशु के नाम से यस माय लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हमारी फैमिली तेरे लहू में छिपी रहे हैं यीशु तेरा शुक्र अदा करते हैं यस यस फादर गॉड हम तेरे शुक्र है दान इस बात के लिए दान जितने हमें सिखाई है बाप कि हमने मुफ्त लिया है और हमने मुफ्त ही अब आप आगे दान अब आप करना है अब आप तू दान हमें दान इसमें गहरा कर दान इसमें मजबूत कर बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यस यस फादर गॉड हालेलुया तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं दान एक बार फिर बाप आकर तेरा शुक्र गुजार और सिस्टर शाहीन के लिए दावन तेरी बरकत तेरी सलामती तेरी दावन अनाइंटिंग तेरी फेवर दावन तेरे चेहरे का नूर को दावन बाज़र बंदी पर गहरे तौर पर इसकी फैमिली में यीशु के नाम से मांगते हैं दावन तेरी हुजूरी हमेशा तेरी बंदी पर छाई रहे तेरे फरिश्ते हमेशा तेरी बंदी को चिपीद रहे तेरे चेहरे का नूर हमेशा तेरी बंदी पर चमकता रहे दावन तेरा पाक हमेशा बंदी को सिखाता रहे और यीशु नासरी के नाम से बाप तो अपने बच्चे के साथ हो और अपने बच्चे की हर तरह की कमजोरी में हर तरह के वीकनेस में तू अपनी बंदी को जोर दे तू अपनी बंदी को तवाना कर तू अपनी बंदी का फजल दे यीशु के नाम से बाप कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है तो तेरा फजल तेरी बंदी के लिए काफी हो जो हर तरह की मुश्किल पर गालिब आता है बाप हर तरह की प्रॉब्लम पर गालिब आता है हम तेरा शुक्र करते हैं तो उसी फजल से बाप हम तेरी बच्ची पर मांगते हैं जो उसकी रूह बदन जान में गहरा काम करे यस यस फादर गॉड हालेलुया अपनी बच्ची पर अपने गहरे भेद खोलता चला जा दावन मौजूदा आरख की तरह अपने बच्चे को ले और इस्तेमाल करे
बहुत सी कौमों के लिए, बहुत सी जिंदगियों के लिए। क्यों जब तेरा बेटा भी आया तो वो हर तरह की दुनिया के, हर तरह के लोगों की, दुनिया के हर तरह की कौम कबीला के लिए आया। और इसी तरह से अपनी बंदी के लिए अपनी बंदी को भी तू ऐसे ही ले, अपने बेटे यीशु मसीह की तरह, जो हर एक रंग कौम का, हर तरह का, किसी भी किस्म का कोई भी उसने ये ख्याल ना रखा, बल्कि हर एक कौम के लिए आ गया। और इसी तरह से अपनी बंदी के लिए इसी तौर से तू ले इस्तेमाल कर, हर तरह की रंग और नस्ल के, कौम के, कबीलों के लोगों को अपनी बंदी के लिए ले और इस्तेमाल कर। यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। बंद दरवाजे खोलते हैं हम यीशु के नाम से, हालेलुया। और बंद दरवाजे खोलते हैं यीशु के नाम से, ना हम मार करते हैं यीशु के नाम से। अपनी बंदी को इंटरनेशनल लेवल पर ले और इस्तेमाल कर, ताकि तेरी बादशाही फैले और उससे पकड़े और जड़ पकड़े। यीशु के नाम है बाप। यस यस फादर गॉड हालेलुया। तेरी शिंदर वरों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी इस्ताइश करते हैं हम। साज राबा तेरी बच्ची की खिदमत से और उसकी जिंदगी से ए बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह को जलाल देते हैं, उसके घराने से ए बाप तेरे यीशु नाम को देते हैं। और सैमसन के लिए और जोशुआ के लिए ए बाप हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तेरी हजूरी जवेद के लिए बरकत चाहते हैं। पूरी फैमिली को तेरे हाथों में देते हैं। उनके साथ साथ रहना, इन पर तेरे फरिश्ते हमेशा इनकी आने जाने में रखवाली करे। हमारे पूरे ग्रुप के साथ हो एक एक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक एक जिंदगी को तेरे बड़े के लोग बचवाते हैं। अंजना के साथ हो, माया के महेंद्र के साथ है बाप, और निदा के साथ हो, समीना के साथ हो, संजिया के साथ हो, सराफिन के साथ हो बाप, सोनिया, शीला, वफा, यूनस और ज़ूम यूजर के साथ है बाप। यस यस फादर गॉड हालेलुया। पूरे ग्रुप पर बड़े के लहू को लगाते हैं। दाऊं तेरी हुजूरी इनको घेरे रखे, इनके घरानों में तेरा पाक लहू ए बाप जुम्बश करता रहे, तेरा पाक रूह जुम्बश करता रहे, तेरा पाक लहू की कुदरत छाई रहे, तेरा पाक रूह की तेरे पाक लहू की ए बाप कुव्वत और ताकत और कुदरत है बाप, इनको संभाले रखे। और तेरी मुर्दों में से जीव की कुदरत है बाप, इनको संभाले रखे। और तेरी फतेहमंद जिंदगी इनको बाप संभाले रखे। तेरी खाली कफन की कुदरत इनको संभाले रखे, और यीशु के नाम से खाली कब्र की कुदरत इनको संभाले रखे। यीशु नासरी के नाम से खाली सलीब की कुदरत इनको संभाले रखे। यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। दाऊं इन पर तेरे बड़े नज़र करम को चाहते हैं, तेरा लहू हमेशा इनको प्रोटेक्ट करता रहे। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं इनके साथ। तो जो भी बाप तेरी बादशाही की वसअत देने के लिए बाप खिदमत कर रहा है, एक एक जिंदगी के लिए वो कुछ भी कर रहा है, तेरी बादशाही की वसअत में इस्तेमाल हो रहा है। हम तेरे नाम को जला देने के लिए कर रहे हैं। उन सब पर बाप हम बड़े के लहू को चाहते हैं। यीशु नासरी के नाम से मल्टीप्लाई हो बाप, इनकी खिदमत मल्टीप्लाई हो बाप, हस्बैंड और वाइफ की खिदमत मल्टीप्लाई हो बाप, पिता की आदान की बाप खिदमत मल्टीप्लाई हो बाप। यीशु नासरी के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस एंड वफा की हस्बैंड की बाप मल्टीप्लाई हो बाप। यीशु नासरी के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड हालेलुया। ये मेरे जिंदगी शिंदा बड़ा जिंदगी ना सन्या के हस्बैंड की खिदमत बाप मल्टीप्लाई हो बाप। यीशु नासरी के नाम से बाप। यस सोनिया की और भाई प्रिंस की बाप खिदमत मल्टीप्लाई हो। ना जोर पकड़े बाप, तू पकड़े बाप, हदे बाप मुकर्रर कर, हदों को ला दे बाप, डोरियों को लंबा कर दे बाप। यीशु नासरी के यस यस फादर गॉड हालेलुया। दाऊं तेरा ही जोर तेरी कुव्वत बाप मांगते हैं। यस माय लॉर्ड, तेरा शुक्र तेरी तारीफ इस्ताइश करते हैं हम। साजदार बात तेरे यीशु नाम को देते हैं। यस लॉर्ड हालेलुया। अब आप दाऊं ने तेरी हुजूरी में आते हैं दाऊं नदीम के लिए। दाऊं तू नदीम की सारी प्रॉब्लम है, दाऊं तू साथ हो। देखे बाप तेरा लहू दाऊं तेरे बच्चे के लिए शिफा के लिए बहाया गया है। दाऊं उसकी शिफा के लिए दाऊं तूने उसको बाप दाऊं खून बहाया, सो अपने बच्चे को शिफा दे, उसकी सारी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम में जाती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप अपने बंदे को बहाल कर, मजबूत कर। दाऊं सारी मुश्किल सारी प्रॉब्लम से तू उसको दाऊं निकाल, और इसकी दामन अब आप दामन अब आप जो भी पैसे की कमी है वो तेरे यीशु नाम से दामन तेरे बच्चे के लिए मुहैया हो। दरवाजे खुल जाए, दरवाजे खुल जाए ना, और रस्ते हमार हो जाए, और अपने बच्चे के लिए दामन और उसकी फैमिली को अब आप उसके बीवी के लिए, उसके बच्चों के लिए अब आप हम तेरी बरकत सलाम चाहते हैं। दामन अब आप दामन ये फैमिली पूरी दामन ये इकट्ठी रहे, तेरे यीशु नाम को इतने जलाल मिले, और दुश्मन का मुसबा फेल हो बाप, और दुश्मन शिकस्त है बाप इनकी जिंदगी से यीशु नासरी के नाम से बाप। हालेलुया। अब आप अपने बच्चों को इकट्ठा कर दाऊं अब आप तेरा शुक्र अदा करते
करते हैं, साथ जलाते हैं यीशु नाम के मिले। ताऊ तेरा रहम और तेरा फजल इसके खाने पे मांगते हैं। हर की लड़ाई झगड़े किस पर यीशु के नाम से बाइंड करते, कमाल करते हैं, अपने कदम पीछे कर। इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप, हालेलुया। दुश्मन का टूटे गिराने से बाप, दुश्मन के मुंह पे फैल और यीशु के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप, हालेलुया। और इजी रे बेरे जरे शिंदे बेरे जरे ताऊ तो गहरा जलाली काम कर अपने बच्चे की जिंदगी में। यस यस ताऊ तेरा शुक्र हो ताऊ ना बाप, दुश्मन कोई भी दावन दुश्मन का मुसबा ताऊ अब कामयाब न, बल्कि हमारे खुदा यीशु मसीह का प्लान तेरे बच्चे की जिंदगी से, उसकी फैमिली से अब पूरा हो। यस यस फादर गॉड, तेरा ही शुक्र और तेरी तारीफ हो। दाऊद तेरा शुक्र अदा करते हैं, ये सब कुछ अब आप मांग लेते हैं मसीह तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अलकदर नाम में, आमीन। एक मिनट पहले के आगे बढ़े इबादत का अख्ताम करें, मैं ना एक मेरा आखिरी पॉइंट था जो कि बिल्कुल एंड पे मैं भूल गया, क्योंकि मैंने वो अपना लिखा नहीं हुआ था मैसेज, तो कुछ भी बोला वो बिना लिखे ही बोल रहा था। 2-3 हिंट्स लिखे हुए थे, तो ये मैंने जो आखिरी मेरा एक बात थी वो बिल्कुल एंड टाइम पे मेरे जहन से ही निकल गया, तो मैंने दिया नहीं कर दिया। तो अगर किसी को इतराज ना हो तो कंटिन्यू कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, जो आखिरी मेरा पॉइंट था जो यीशु के खून को ताकि पीछे वाले सारे जो कुर्बानियां हैं उनसे अलग करता है, वो सबसे जो बड़ी बात है कि पीछे जितनी भी कुर्बानियां हुई, जो कुछ भी हुआ, उनमें से किसी कुर्बानी के सबब से जो है कोई इंसान खुदा के बेटे और बेटियां कहलाने का हकदार नहीं था। उससे पहले इसराइल के लिए जब बात की जाती थी तो यही कहा जाता था कि तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरी कौम होगे, लेकिन बेटे और बेटियां होने का हक जो है वो हमें यीशु ने अपना खून बहा के जो है दिया। इससे पहले हम खुदा के बेटे और बेटियां नहीं थे। इसराइल तो पहलौठे के तौर पे था ही, और कौम के तौर पे और लोगों के तौर पे इसराइल तो था, लेकिन हम जो गैर कौम वाले हैं, हमारी तो कोई वैल्यू थी ही नहीं। और खुदा ने हजारों साल के बाद जब सुनी तो हमें अपने लोग या अपनी कौम नहीं कहा, हमें वो दर्जा दे दिया। इससे बड़ा दर्जा शायद ही कोई और हो सकता है कि खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया और हमारा बाप बन गया। तो ये एक जो डिफरेंस है वो हमें पीछे कहीं नजर नहीं आता। किसी मेमने के खून में, किसी और कुर्बानी के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि हमें खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक बख्शता। ये वाहिद और वाहिद यीशु का खून है कि जिसने हमें खुदा के बेटे और बेटियां होने का जो है वो बख्शा है। और किसी के अंदर ऐसी जो है वो हिंदी का जो लफ्ज़ नहीं थी जो यीशु के खून में। वरना हम जो है वो आप जानते हैं कि दूसरी कौमें जो है वो इसराइल के मुकाबले में कुछ नहीं, लेकिन अभी हम जो गैर कौमों में से आए हैं, हम जो है वो गैर कौम नहीं कहलाते बल्कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। ये मेरा आखिरी पॉइंट था जो एंड टाइम पे मैं भूल गया था, तो मैंने कहा चलो ज्यादा आ गया तो दोबारा से बता। उम्मीद है आप लोगों ने आज के कलाम की इसी तरह से बरकत पाई। आमीन। आमीन आमीन। हाँ जी बिल्कुल, खुदा उनका हम शुक्र करते हैं और उसकी के उसके खून में पावर है, उसके नाम में पावर है, और उसी खून ने हमें ये हक बख्शा कि हम खुदा के बेटे बेटियां कहलाएं। जिस तरह के वो खुदा का पलौठा है, उसने हमें भी ये हक दे दिया। तो इसलिए खुदा उनका हम शुक्र करते हैं यीशु मसीह के खून बहाने के लिए। और खुदावंद बाप ने जो अपने बेटे की इतनी बड़ी कुर्बानी दी हमारी खातर, वो कभी भी रायगा नहीं जा सकती थी। और खुदा यीशु मसीह ने जो हमारी खातर कुर्बानी दी कि अपने खून को बहा दिया, तो इसलिए बाप और बेटे ने दोनों ने कुर्बानियां दी, तो हमें ये फ्री में मिल गया। लेकिन उन्होंने ये कुर्बानियां दी, बाप ने अपने बेटे की दी और खुदा यीशु मसीह ने अपने बदन की, अपने रूह बदन जान की, है ना। तो इसलिए हमारे लिए ये फ्री है, लेकिन बाप के लिए ये फ्री नहीं था। उसने बहुत हमने जैसे पिछले स्टडी में सीखा है ना
کہ خداوند نے اس وقت خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا تھا، ہے نا، کہ جب ہمارے گناہ اس کے اوپر لاتے تھے، تو اس لیے خداوند نے قربانی دی، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی ہماری خاطر کہ وہ کبھی جدا نہیں تھے ہوئے اس وقت، یعنی باپ اور بیٹا اس ٹائم وہ جدا ہوئے، تو اس لیے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی، ہمارے باپ نے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے۔ تو اس لیے اب ہمیں یہ فری میں ملی ہے، تو اس کی قدر کرنا اب ہمارا کام ہے نا۔ تو اس لیے جیسے کہ سیڈرک نے ہمیں سکھایا کہ پہلے یہ حق نہیں تھا ہمارے پاس، مطلب، لیکن اب یہ خداوند نے حق دیا، تو اس لیے اب ہمیں اس کی قدر کرنی، اور اس کو جیسے پہلے یوز ضرور کریں، کہ قدرت کو دیکھیں، اور جیسے کہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ چکھو، یعنی اس تجربے کو ہم دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح کے خون میں پاور ہے۔ تو خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں آج کے سارے کلام کے لیے، ساری پرستش کے لیے، خاص آج جو ہم نے سیکھا کہ یہ پہلے نہیں تھا پرانے عہد نامے میں، لیکن اب ہمیں خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہم جو دور کے لوگ تھے، ہم جو پردیسی تھے، ہماری جو کوئی حیثیت نہیں تھی، غیر قوم تھے ہمیں یہ حق ملا۔ پہلے یہ حق اسرائیلیوں کے پاس تھا، لیکن اب ہمیں بھی یہ حق ملا۔ تو خداوند سیڈرک کو بڑی برکت دے، اور خداوند اسی طرح اپنے نام، اپنے جلال کے لیے قدرت سے، طاقت سے استعمال کرتا رہے، اور خداوند اپنے گہرے بھید اس کے اوپر کھولتا رہے، گہرے اور مکاشفات کھلتے رہیں اس کے اوپر، تاکہ یہ اس گروپ کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے باعث برکت بنتا رہے، اور خداوند اس کو اور زیادہ بڑے ہی انٹرنیشنل طور پہ خداوند استعمال کرے۔ اور میں یہ بعد میں کہنا چاہتی تھی، لیکن ابھی میں کہ خداوند نے جب سریا اس کے لیے دعا کر رہی تھی، سیڈرک کے لیے، تو خداوند نے مجھے آواز بھی آئی، اور میں نے دیکھا بھی کہ خداوند جو ہے کہہ رہا ہے کہ جس طرح جیسے جیسے یہ خداوند میں بڑھتا جائے گا، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جب خداوند کی خدمت یا خداوند نے اس کو چنا تھا، وہ کمزور تھا، اس کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ توتلا تھا، اور بہت سے اس نے کہا کہ میرے اندر یہ ہے کمی ہے، لیکن خداوند نے اس کو بڑے ہی، ہم سیکھتے ہیں کہ بڑے ہی جلال کے ساتھ استعمال کیا۔ موسیٰ کی طرح کوئی بھی خداوند کا ایسا خادم، خداوند کا ایسا نبی نہیں تھا جس طرح خداوند نے موسیٰ کو استعمال کیا۔ تو اس کی کمزوریوں میں خداوند نے اس کو استعمال کیا، اس کو ٹھیک نہیں کیا کہ میں اس کی زبان کو ٹھیک کر دیتا ہوں تو وہ پھر یعنی فرعون کے پاس جائے، ہے نا۔ خداوند نے اس کی کمزوریوں میں اس کو استعمال کیا۔ تو خداوند سیڈرک کے لیے ایک کلام کر رہا تھا کہ جیسے جیسے یہ مجھ میں بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے اس طرح میرے نام کو اونچا کرتا جائے گا اپنی زندگی میں سے، ویسے ویسے اس کے اندر، اس کی باڈی کے اندر، اس کی جو بھی کمی کمزوریاں ہیں، اس کی جو بھی فائنانس کی پرابلم ہے، یا جو بھی اس کی پرابلم ہے، وہ ویسے ویسے ٹھیک ہوتی جائے گی، ویسے ویسے خداوند جو ہے اپنے جلال کو اس کی زندگی میں دکھاتا جائے گا۔ تو خداوند جو ہے پہلے سب کچھ ٹھیک نہیں کرتا، وہ انہی کمزوریوں میں اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے۔ اور بھی بہت سی گواہیاں، لیکن اس ٹائم خداوند نے مجھے موسیٰ کا ہی یاد کرایا کہ وہ خداوند نے اس کو اسی طرح استعمال کیا تھا جس طرح وہ تھا۔ تو اس لیے خداوند جو ہے سیڈرک کے لیے جو بھی جس طرح بھی یہ چل رہا ہے، یا جیسے بھی ہے اس کی زندگی روحانی طور پہ، جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا، خداوند اس کی ساری پرابلم ٹھیک کرتا جائے گا۔ اور میں نے دیکھا تھا کہ خداوند کا جو مسا ہے اس کے اوپر ڈیلا جا رہا ہے، ایک وائٹ میں نے لیکوڈ جو تھا اس کے اوپر دیکھا تھا کہ خداوند ڈیل رہا ہے، جو کہہ لیں سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک وہ اس میں یہ کور ہو گیا تھا سیڈرک۔
تو اس لیے میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ خدا نے اس کو نیا زور دیا ہے، نئی طاقت دیا، اپنا فضل دیا ہے کہ جن بھی حالات میں یہ ہے خدا اس میں ہی اس کو استعمال کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا، اور خدا اس کو آگے بڑھاتا جائے گا اپنے زور میں، اپنی طاقت میں۔ تو اس لیے میں خدا کا شکر کرتی ہوں اس کی آج کی ساری برکت کے لیے، آج کے سارے کلام کے لیے۔ اور جب ندیم کے لیے سریا پریئر کر رہی تھی تو میں نے اس طرح دیکھا، میں نے اس فیملی کو کٹھے دیکھا، ایسے جیسے چارپائی ہے، بیڈ ہے، تو اس کے اوپر یعنی اس کے بچے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میرا ایمان ہے جو بھی پرابلم ہے، جو بھی کچھ ہے، خدا کے کنٹرول میں، اور اس نے خدا نے اس کو حل کر دیا۔ اور ہاللویا۔ ہاں جی، بیوی بچے آ گئے ہوئے ہیں نا۔ اوہ پریز گاڈ، مجھے پتا نہیں تھا، لیکن چلیں خدا نے مجھے دکھایا کہ وہ کٹھے بیٹھے ہیں۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ تو خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ قدرت والا، طاقت والا خدا ہے۔ اور جب سریا میرے لیے پریئر کر رہی تھی تو تب میں نے بھی اپنے اوپر دیکھا کہ خداوند ایسے جیسے ایک لیکوڈ ہے جو شائننگ جیسے وائٹ ہے، تو وہ میرے اوپر انڈیلا جا رہا ہے، اور میں نے اس طرح دیکھا ہے جیسے سر سے پیچھے والا جو میری بیک ہے اس کے اوپر گر رہا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ خداوند نے مجھے ایک مضبوطی کا، طاقت کا جو مسا ہے وہ دیا، کیونکہ کمر ہی ہے جو ہمیں ایک قسم کا کہہ لیں کہ خداوند کہتا ہے کہ جو وہ پٹکا ہے وہ باندھ کے رکھ کمر پہ، ہے نا، اور وہ میں مضبوط کرتا ہے، وہ کھڑا رکھتا ہے۔ ہم اسی کے ایمان کے وسیلہ سے، اسی کی طاقت کے وسیلہ سے کھڑے رہتے ہیں۔ تو خداوند نے مجھے نیا مسا دیا ہے، نیا زور دیا ہے، اس لیے میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند، ہاللیلویا، جیسس جیسس، ہاللیلویا، تھینک یو لارڈ جیسس۔ خدا ان کا شکر ہو آج کی ساری برکت کے لیے، خدا ان کے آج کے سارے کلام کے لیے۔ خدا نے آج جو پورے گروپ کو نیا مسا دیا ہے، اور خدا نے جو ہمارے ساتھ کلام کی ہے اس کے لیے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، تھینک یو لارڈ جیسس۔ اب خدا ان کا ہاللیلویا، ہاللیلویا، تھینک یو لارڈ جیسس، ہاللیلویا، ہاللیلویا، یس لارڈ، یس لارڈ۔ ہاں جی، ایک اور خداوند مجھے دکھا رہا ہے کہ جیسے خداوند جو ہے سریا کے اوپر خداوند کا ہاتھ جو ہے بڑا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے جیسے پیچھے بیک پہ خداوند کا فرشتہ ہے جو اس کو جیسے کہہ لیں یہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن خداوند اس کو، خداوند کا فرشتہ جو ہے اس کو اٹھانے میں اس کی ہیلپ کر رہا ہے، یعنی کھڑا کرنے میں اس کی ہیلپ کر رہا ہے۔ تو میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند جو ہے ہمیں گرا نہیں رہنے دیتا، یا ہمیں کمزوری میں زندگی نہیں گزارنے دیتا، وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ نیا زور، نئی طاقت دیتا ہے۔ تو خداوند کا شکر ہو، اس کی تعریف ہو، آمین۔ اب ہمارے خداوند کا فضل، اس کی تسلی، اس کا اطمینان ہم سبوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے، جب تک کہ خداوند یسوع مسیح آنے جاتا، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ اگر اور بھی کسی کو خداوند کے آمین کلام سے کوئی تسلی ملی ہے کہ آج کا کلام میرے لیے تھا، تو وہ شیئر کر سکتا ہے۔ کسی کو برکت ملی ہے آج کے کلام سے تو وہ شیئر کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کا شکر ہو۔ میں نے جب بھی میں مطلب مجھے نہیں پتا کہ سسٹر شاہین نے کیسے مطلب مجھے کہا کہ بلڈ کے لیے مطلب پریئر کرنی ہے، تو جب بھی میں نے یہ پریئر کی ہے مطلب ان دنوں میں، تو مجھے نہیں مطلب ویسے میں اپنے آپ کو مطلب وہ فٹ نہیں مطلب پا رہی ہوتی، لیکن جب میں مطلب پریئر میں بیٹھ جاتی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ مطلب کیسے میں کہ بولتی جاتی ہوں اور کیسے بول جاتی ہوں، یا میں مطلب میرے اندر مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا جو بدن ہے وہ ہیل ہو رہا ہے اندر سے،
मतलब मुझे पता चल रहा है कि मैं Hallelujah. Yes. पूरे मतलब इन ब्लड के दिनों में जो मैं जैसे जैसे प्रेयर करती रही हूँ, तो क्योंकि पता नहीं क्या बात है मेरे एक अंदर में मेरे इनर जो अंदर वाली साइड है, जो दिल के ऊपर और जैसे ब्रेस्ट है और बैक है, पीछे वाली है ना, मुझे इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम फील होती है। और होती थी। लेकिन मैंने अब तक कुछ हाँ लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं अभी तक कुछ भी, तब की जब वो प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं कैसे इसका बयान करूं। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रेयर करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हील हो रही होती हूँ। तो खुदावन का शुक्र है कि वो हमें मतलब इस पे मतलब उसके लहू के वसीला से हम शिफा पाते हैं। यानी बताने का ये मतलब है, जब जब मैंने प्रेयर की है तो मुझे अपनी बॉडी में हीलिंग जो है वो फील होती है। पता नहीं चल रहा था, मैं पसीना पसीनी हुई होती हूँ और मेरे अंदर ऐसे हीट, जैसे कहते हैं ना कि हीट लगी होती है, ऐसे हुआ होता है मेरा बदन। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. जी बिल्कुल, खुदावंद ऐसे ही कर रहा है कि आपको हील कर रहा है, अंदर से हील कर रहा है। हमारी जो अंदरूनी हमने सीखा था कि बीमारियां जो है खुदावंद उनको हील कर रहा है। तो जैसे जैसे आप बोलती थी, मैं भी ये गवाही एक किस्म की कहने देना चाहती हूँ कि जो ये ब्लड पे मैंने जब से कहले खुद भी बोली और आपसे भी सुना, जिन्होंने बोला है, मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मेरी अंदरूनी जो बीमारियां थी या कोई सब तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फर्क अपने अंदर जो कहले महसूस हो रहा है। और मैं अपने आप को ज्यादा एक जैसे कह लें फिट जो है महसूस करती हूँ। और यही देखिए खुदा उनके पाक रूह की और पाक खून की कुदरत है, ताकत है कि मैं तकरीबन कोई 3.5-4 महीने के बाद चर्च गई नहीं, तो मेरे अंदर ऐसे जैसे ताकत नहीं होती थी। और जिन दिनों ये ब्लड पे मैं दे रही थी, तो मैं बहुत ही जैसे कह लें एक जिस्मानी तौर पे पहले बीमारियों ने मुझे घेरा हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे मैं ब्लड पे बोलती गई, खुद भी मैं हील हुई और मेरा ईमान है कि आप सब भी हील हुए हैं, अंदरूनी तौर पे भी, बैरूनी भी हुए होंगे ज़रूर। लेकिन अंदरूनी जो बीमारियाँ थी, मैंने अपने अंदर मैंने बड़ा महसूस किया कि खुदा ने मुझे शिफ़ा दी उसके खून के वसीले से। तो मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ। फैमिली में भी मैंने देखा कि हमारी फैमिली हील हो गई, यानी स्पिरिचुअली तौर पे। कुछ अरसा हो गया था कि हम स्पिरिचुअली थोड़े जैसे कह लें लो चले गए थे, वीक हो गए थे। लेकिन फिर से खुदा ने एक हमारे घर में एक जैसे कह लें बेदारी आ गई है, नई ताज़गी आ गई है। तो खून पे जब से मैंने बात की, आप यकीन करें कि मैंने तो बहुत बरकत पाई है। और मुझे रात को मैं जब प्रेयर कर रही हूँ तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो हमें हर महीने करना चाहिए। एक वीक सारे हम इस पे बात करें। तो मैं सोच ही रही थी, लेकिन मैं भूल गई थी अभी ना। लेकिन जब सरैया ने बात की तो मेरे भी आया कि आपकी जैसे कह लें कि एक मशवरे से हम ऐसा करते हैं कि हर महीने ही एक वीक रखते हैं जिसमें हम सभी थोड़ा-थोड़ा बात करें। उससे आप बड़ा ही बरकत और घर में स्पिरिचुअली अंदरूनी जैसे कह लें बैरूनी जो बीमारियां हैं, उससे आपकी जिंदगी जो है यानी आपकी जिंदगी में शफा जो है आना शुरू हो जाएगी। तो मैं ये रात को जब प्रेयर कर रही थी तो मैं सोच रही थी, लेकिन अभी भूल गई थी। लेकिन जब श्रेया ने बात की तो मेरे फिर से आया। तो मैं आप सबसे चाहती हूँ कि क्योंकि हम एक जैसे कह लें ग्रुप हैं, एक बेशक रूहानी तौर पे मुझे खुदा गाइड करता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर आप सबका ये है तो हम इस पे, क्योंकि अभी काफी लोग रहते हैं जिन्होंने, खास मैं चाहूंगी कि सुरैया जरूर खून पे बात करे। और भी जो लोग रह गए हैं, तो अभी हम मेरा इस महीने के एंड में अ, फिर से फ़ोन पे बात करेंगे, क्योंकि मैंने बड़ी इसमें ताकत महसूस की है कि खुदावंद ने मुझे नया ज़ोर, नई ताकत दी है। तो मेरा ईमान है खुदावंद ने हमारे ग्रुप को भी जैसे कि अ,
हमारी जो बेटी है सोनिया सॉरी सनिया, उसको देखे खुदावंद कितना अपने नए भेद खोल रहा है। खुदावंद उसको नई शायरी और दे रहा है, गीत गा रही है। और भी बहुत से हैं जिनका अभी एकदम से मेरे नहीं आया। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब इसको जारी रखें और हर महीने ही थोड़ी-थोड़ी इसके ऊपर बात करें। तो अगर आपका जैसे कह लें कि हाँ है, तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है? तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। और भी कोई कुछ टेस्टिमनी देना चाहता है इन दिनों? ब्लड पे जो बात हुई उन दिनों आपकी ज़िंदगी में कोई काम हुआ, कोई शिफ़ा का काम, कोई रूहानी तौर पे? क्योंकि ये रूहानी ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने जब ये ग्रुप शुरू किया, तो खुदावंद ने असल में मुझे जैसे जो एक जो मसा है वो दिया है, वो रूहानी डिलीवरेंस का है, स्पिरिचुअली। अ, शफ़ा जो है जिस्मानी वो तो कह लें फ्री में ही हो जाती है, लेकिन मुझे खुदावंद ने ख़ास मसा दिया है कि ज़िंदगियाँ तब्दील करने का, ज़िंदगियों में जो जैसे कह लें डिलीवरेंस लाने के लिए आज़ादी लाने के लिए, बहाली लाने के लिए खुदावंद मुझे यूज़ करता है कि जो कलाम है वो मेरे साथ इस तरह खुदावंद जो है करता है कि ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं। नए जैसे कह लें मुकाशफ़े खुल रहे हैं, नए वो जो हम किसी बंधन में बंधे हुए हैं, खुदावंद मुझे उस तरह इस्तेमाल करता है। तो किसी और को खुदावंद ने ऐसा कह लें बहाली आई उसकी ज़िंदगी में, खुशहाली आई, शफ़ा आई फाइनेंस के उसमें या किसी भी, तो खुद वो टेस्टिमनी शेयर कर सकता है। क्योंकि आज सैड्रक ने थोड़ा जल्दी ख़त्म किया, तो हम थोड़ा-सा इस पे बात कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो। कि इन दिनों में खुदा ने आपको शफ़ा दी, रूहानी तौर पे या जिस्मानी तौर पे, जैसे सुरैया को हुई। जी, ओके ठीक है। फिर अगर किसी का नहीं है ऐसा, तो हम फिर कभी इस पे बात कर लेंगे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट जी।